Hello, my dear students. This is Komal Manglani, and we are studying science. We are studying chapter number 2, Nutrition in Animals, and this is part 3 of this chapter. We have already discussed about the nutrition in human beings and that also the digestion process in human beings. We have completed till the digestion in stomach. Now we will learn about digestion in small intestine and then see the further process takes place in our body. Let us learn this with the help of one video. Just concentrate. Small intestine. Small intestine is a highly coiled structure and is about 7.5 meters long. As soon as the small intestine receives food from the stomach, the digestive juices from liver and pancreas are mixed into it. Liver. Liver is the largest gland in the human body. That means the food from the stomach enters into the small intestine, and in small intestine various digestive juices comes from various glands like liver and pancreas, and also produced in the small intestine itself, and then that juices helps the food to be digested. Let us see about the liver. It is the largest gland in the body and is situated in the upper side of the abdomen. To the right, it is reddish brown in color. It secretes bile, which breaks down fats. Bile is stored in gallbladder between meals. Liver is the largest gland and it is situated on the upper side of the stomach, and it produces a bile juice. Bile juice is green colored juice that is produced in the liver and then it is stored in the gallbladder. Bile जो है वो green color का juice होता है जो liver जो है वो secrete करता है और उसे store करता है गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर में ये जूस जो है वो सीक्रेट होके उसमें से एक डक्ट निकलती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, और ये जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्यूमुलेट होता है, जमा हो जाता है. इसके बाद देखेंगे पैनक्रियाज. Pancreas is a leaf-shaped and cream-colored gland located just below the stomach. It secretes pancreatic juice, which acts and breaks down carbohydrates, proteins, and fats. After this is completed, the partially digested food reaches the lower part of the small intestine, where intestinal juices act upon the food and completes digestion of any remaining components in food. The carbohydrates in the food break down into sugars like glucose, fats into fatty acids, and glycerol, and proteins into amino acids. ये जो फूड है जैसे कि इनने बोला कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे ग्लूकोज में यानी कि सिंपल शुगर में. इसके बाद फैट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होंगे फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे अमीनो एसिड्स में. बट ये जो विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको कन्वर्ट करने की या चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. वो सेल्स जो हैं वो उन्हें डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. फूड जो भी डाइजेस्ट हुआ वो अब एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी है. Food consumed is digested and is now ready to be absorbed into the blood. अब आएगा absorption का process. Absorption of food in the small intestine. The inner wall of the small intestine has finger-like projections called villi, which have a network of thin blood vessels close to the surface. The villus increases the surface area of absorption and absorbs the digested food materials.
The substances thus absorbed are transported through the bloodstream to different organs in the body and are used to build complex substances like proteins. This process is called assimilation. In the cells, glucose breaks down into carbon dioxide and water with the help of oxygen and releases energy. The undigested and unabsorbed food enters the large intestine. Large intestine. The large intestine is wider than small intestine and measures 1.5 meters in length. Once the undigested food enters the large intestine, it absorbs water and some salts from it and passes the remaining waste into the rectum. Here it remains as semi-solid fecus. The fecal matter is removed through the anus. This is called egestion. So यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है. डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. सो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है ह्यूमंस में वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. इसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड्स में, पूल्स में, डिचेस में, खड्डों में, सब जगह जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है वहाँ पे हमको देखने को मिलता है. बट इट इज नॉट विजिबल थ्रू द नेकेड आईज. हमें ऐसे ही दिखाई नहीं देगा, बट वी कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. हमें वो माइक्रोस्कोप की मदद से ही दिखाई देगा क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है. ये कॉन्स्टेंटली अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है बाय पुशिंग आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट meant for locomotion and capturing food. ये अपना जो शेप है वो कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है. इसकी बॉडी से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते रहते हैं जिनको हम स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट कहते हैं, जो कि लोकोमोशन में यानी कि चलने में या आगे मूवमेंट करने में और उसका फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं उसे. ये सारा प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन का, जो कि जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सारे के सारे स्टेप्स जुड़े हैं. ये सारा का सारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो सिर्फ एक सिंगल सेल करता है अमीबा का. चलिए हम इसके लिए एक वीडियो देखेंगे. लेट अस सी द वीडियो. इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि अमीबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो फ्लोट करते हैं वाटर में उन्हें खाता है. उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है. अमीबा जो है वो न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में कंप्लीट करता है जैसे दूसरे एनिमल्स करते हैं. वो 5 प्रोसेसेस हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं अमीबा जो है उसमें इंजेशन कैसे होता है. जब भी कोई फूड पार्टिकल उसके पास आता है अमीबा के, वो स्यूडोपोडिया की मदद से उसे घेर लेता है और एक फूड वैक्यूल बना लेता है. ये फूड वैक्यूल जो है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. अब ये जो डाइजेस्ट हुआ फूड वो एब्जॉर्ब होगा पूरी बॉडी में उसके, पूरी सेल में, क्योंकि एक ही सेल से उसकी पूरी बॉडी बनी हुई है. वो पूरा का पूरा डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है उसके साइटोप्लाज्म में. एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, यानी कि वो उस एनर्जी को यूज करता है अपने लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए. जो फूड मटेरियल उसने खाया, जो उसने एब्जॉर्ब किया, वो उसका यूज करेगा अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए. जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है जो उसकी बॉडी के अंदर है, वो उसकी मेम्ब्रेन जो है अचानक से रप्चर हो जाती है यानी फट जाती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वहां से बाहर निकल जाता है अमीबा की बॉडी से. इस प्रोसेस को हम एजेशन कहते हैं. अमीबा जो है वो डाइजेशन जो है वो एक ही सेल के अंदर करता है
और इस तरीके का जो डाइजेशन है उसे हम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। इस तरीके से अमीबा में जो न्यूट्रिशन है उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेट अस सी न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। अब हम देखेंगे रूमिनेंट्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है। रूमिनेंट्स क्या होते हैं एक्चुअली? तो रूमिनेंट्स जो होते हैं कुछ ऐसे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, डियर है, शीप है। ये सारे के सारे जो हैं एनिमल्स वो हर्बीवोर्स हैं, लेकिन उन्हें हर पल डर लगा रहता है कि कोई उसका शिकार ना कर दे, यानी कार्निवोरस एनिमल्स आके उनका शिकार ना कर दे। तो क्या होता है कि वो अपना जो फूड होता है वो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, निगल लेते हैं, उसे अच्छे से चबाते नहीं हैं, च्यू नहीं करते हैं। ये फूड जो है वो अपने जल्दी से थोड़ा सा चबा के, बहुत ही कम चबा के, सलाइवा के साथ मिक्स होके वो सीधा उसे स्वेलो कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब वो किसी सेफ प्लेस पे पहुंच जाते हैं तो वो जो खाना उन्होंने अब स्वेलो कर लिया है उसे वापस से अपने माउथ तक लाते हैं, फिर उसे अच्छे से च्यू करते हैं और फिर उसे स्वेलो करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो इस प्रोसेस को करते हैं हम उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। चलिए हम रूमिनेंट्स के अंदर का न्यूट्रिशन जो है उसका प्रोसेस देख लेते हैं। The ruminants, the grass eaters which chew half digested food or ruminate, are called ruminants. They have special stomachs which are divided into 4 compartments: rumen, reticulum, omasum and abomasum. In ruminants, half-chewed grass travels from the mouth to the first chamber of the stomach, where it is acted upon by bacteria and other microorganisms. Then it enters into the second muscular chamber. From there, it is sent back to the mouth to be chewed again. This is what the cow chews when it seems to be munching something thoughtfully. Then we say the animal is chewing cud or ruminating. The rechewed food is swallowed again. This time it bypasses the first 2 chambers and enters the third chamber. Here it is broken down into still smaller pieces. Finally, it enters the 4th chamber, where enzymes act upon it and digestion is completed. Here we can see that digestion is completed in abomasum. Then the food passes through the small intestine and here absorption of food takes place. ये पूरा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। वहाँ पर उसका जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में और उसके बाद वो बाहर आ जाता है बॉडी के, उसे हम इजेशन कहते हैं। इस तरीके से रूमिनेंट्स में ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। The ruminants. जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।